Hi everyone, this is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class. Today I will tell you about the English literature. जैसे कि आपको पता है सीरीज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने स्टार्ट की है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो इनिशियल से कवर करते जा रहे हैं। आज मैं पढ़ूँगी एलिट्रेटिव वर्सेस 8th सेंचुरी 14th सेंचुरी तक, ठीक है। The story of English literature begins with the Germanic traditions of the Anglo-Saxon settles Beowulf standard at its head. This epic poem of 8th century is Anglo-Saxon, now more usually described as Old English. It is comprehensible to a reader familiar and with modern English. Even so, there is a continuous linguistic development between the two. The most significant turning point from about 1100 is the development of Middle East. Differing from Old English is the addition of a French vocabulary after a Norman conquest. French and Germanic influences subsequently compete for the mainstream role in the English literature. The French poetic tradition, including the lines of regular metric length, usually linked by the rhyme into the couplets of stanzas. German poetry depends more on rhythms and stress with the repeated consonants, alliterations to bind the phrases, elegant or subtle rhymes have a courtly favor. The hammer blows of alliterations are type of the verbal aestheticism more likely to draw applause in the hall of the warriors. तो यहाँ पे मैंने बात की है लिटरेटिव्स वर्सेस 18th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी तक। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि एंग्लो सैक्सन जो था वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें कौन कौन से स्टैंजाज रेगुलर कपलेट्स जो थे, मैट्रिक लेंथ जो थी, और इस जर्मन पोइट्री जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी और डिपेंड करती थी रिदम एंड स्ट्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो है फर्दर हम जो है वो डिफाइन करेंगे बोथ ट्रेडिशन अचीव अ मैग्निफिशेंट फ्लावरिंग इन इंग्लैंड अ लेट ऑफ द 14th century towards end of the Middle English period. Piers, Plowman and Sir Gawain are masterpiece. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पायर्स प्लोमैन। बेसिकली पायर्स एंड प्लोमेन एंड सर गाविन का लिखा हुआ है 14th सेंचुरी 1332 से 1408 तक का पीरियड है। ऑफ दीज टू ग्रेट इंग्लिश एलिट्रेटिव पोएम्स द सेकंड इज एंटायरली एनोनिमस and the first virtual, so the narrator of the Piers Plowman calls himself Will. Occasional references in the text suggest that his name may be the Langland. Nothing else apart from his poem is known of him. Piers Plowman exists in the three versions. The longest amounting to more than 7,000 lines. It is considered probably that all three are by the same author. If so, he spent more 20 years from the about 1367 adjusting at the refining the epic creation. Piers is the plowman. A plugman is one of the group of characters searching for Christian truth in the complex setting of a dream. Though mainly is spiritual quest, the work also has a political element. It contains sharply observed details of the corrupt एंड। तो यहाँ पे जो है पायर्स प्लोमेन एंड सरगाविन जो है फॉर एग्जांपल 14th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। 1332 से लेकर इनका पीरियड जो है 1408 तक है। ये पोइट्स ऑफ चौसर या पोइट्स ऑफ जो हैं चौसर की एज ऑफ चौसर की कंपेनियन भी। अच्छा, ये देखा जाए तो चौसर का और सरगाविन का जो था वो कंपेनियनशिप भी थी और राइवल भी था। तो ये आपस में जो थे वो राइवल भी थे और कंपेनियनशिप भी थे। तो इसलिए जो है प्लोमेंस जो है वो रिटर्न हुई बाय द गावर के हाथों, और उसने जो है इसमें एक्सट्रीमली बहुत ये एक मास्टर पीस था ना मटेरियलिस्टिक एज का। तो यहाँ पे उसने जो है सरगावी ने जो है मतलब अपनी मतलब बहुत ज़्यादा एबिलिटी और एप्टीट्यूड यूज़ करते हुए ये जो है प्लग बैंड्स के ऊपर राइट डाउन की, जो कि एक ग्रुप था। तो यहाँ पे जो है वो कंसीडर करना है इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो मैं आपको दोबारा जो है वंस अगेन रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपको वो तमाम जो है वो रिमाइंड रहे। तो फिर जो है अब हम थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं
इंस्पायर्स जियोफ्री चौसर। बेसिकली जियोफ्री चौसर जो है 1367 से लेकर इनका पीरियड है 1400 तक। इन 1367 वन ऑफ न्यू Yeomans of chamber in the household of the Edward III is Geoffrey Chaucer, the aged about 27. The young man's wife, Philippa is already a lady in waiting to the queen. A few years later, Chaucer becomes one of the king or esquires with duties which includes entertaining the court with story and music. There can rarely have been a more inspired appointment. Chaucer poems are designed to be read aloud in the instance by himself. They range from high romance to bawdy comedy is well calculated to hold the listeners spellbound. Courtly circles in England are his first audience. Chaucer's public career is one of the almost unbroken success in two consecutive region में he under taking diplomatic missions abroad on behalf of the king. He is giving administrative posts such as controlling the custom which bring जो था lodgings and the handsome stipends. Even occasional disaster हुआ था such as being robbers twice in 4 days in 1390 and losing the $20 of Richard. It the money do him no lasting harm. Amer करें तो Chaucer skills are courtier is that during the 1390 when he is the employment of Richard II. He also received gifts at Christmas from the Richard's rival. Take when Bolingbroke unseats Richard II in the 1399, taking his place on the throne as Henry IV. Chaucer combines diplomacy and with secure his position. Having lost his royal appointment, he reminds the new king of his predicament in a poem entitled The Complaints of Chaucer to his empty purse. द लास्ट लाइन ऑफ जो थी इसकी वो हम डिफाइन करते हैं ईच वर्स बेसिकली जो है ईच वर्स जो थी बैग्स द पर्स टू द हैवी अगेन और एल्स मस्ट आई डिड हेनरी फोर जो तो हियर्स द मैसेज द कॉड पोइट इज गिविंग अ न्यू एन्यूटी. Henry is certainly aware that he is keeping in the royal circle a poet of great distinction. Chaucer's reputation is such that when he dies in the following year, he is granted the unusual honor for a commoner of being buried the Westminster Abbey. फर्दर हम जो डिसाइड यहाँ पे जो फर्दर पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रायलस एंड द क्रीसीड 1385 मास्टरपीस है. चौसर का फर्स्ट मास्टरपीस है. इज सस्टल अकाउंट ऑफ द वूइंग ऑफ द क्रीसीड बाय ट्रायलस विद द एक्टिव इंकरेजमेंट ऑफ क्रीसीड्स की अंकल पंडारस. The tender joys of their love affairs are followed by the Cressids, Bertrand and Troilus' death in the battle. चौसर जो है वो उसने अडॉप्ट किया था टू ऑन पर्पज द मोर कन्वेंशनली ड्रामेटिक अकाउंट ऑफ हिज लेजेंडरी अफेयर्स का रिटन सम 50 years अर्ली बाय द बुक्काशो. तो बुक्काशो से जो है इसने अर्ली ये मतलब राइट डाउन किया था. चौसर टोन इज डायलेक्ट सटल oblique, though he doesn't prevent him from the introducing and gently satiring the so many vivid details of life at court as guide to readers through the long psychological intricacy by which Pandaran. सो ये तो था एक इंटरनेशनल चार्म एंड डिटेल्स थी पोएम्स की. बट हम यहाँ पे फर्दर जो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो है द कैंटरबरी टेल्स. रिटन हुई थी 1387 में जिसका पीरियड था 1400 तक. कलेक्शन ऑफ टेल्स है आर फेवरेट लिटरेरी कन्वेंशंस ऑफ द 14th century है. बोकाशो Decameron is the best known example before Chaucer time, but Chaucer is the Canterbury Tales outshine his predecessors. अच्छा जी ये जो थी he does so in the range and vitality of the story in his collection की from the courtly tone of the night tale to the rough and often जो है इसमें ऑब्सेंस हुई है ऑब्सेंस ऑफ ह्यूमर है ऑफ दोज नॉन टेक्निकली एज फेबिलियाक्स.
तो कैंटरबरी टेल्स को जो है वो हम फर्दर मज़ीद डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस है टेल्स का। और इसमें जो है पिलग्रिमेज जो थे वो 30 के करीब थे, दैम इंक्लूडिंग चौसर हिमसेल्फ गैदर था वन स्प्रिंग डे at the Tebards in Southwark. The host of the inn, Harry Bailey, is a real contemporary of Chaucer. His name featured in historical record. He will act as a their guide on. इन गाइड किया था। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक मतलब फेमस पीस ऑफ राइटिंग है, टेल्स का कलेक्शन ऑफ टेल्स का फेवरेट लिटरेरी कन्वेंशंस के ऊपर 14th सेंचुरी में है। और ये जो है बेस्ट नोन जाता है एग्जाम्पल्स है चौसर्स टाइम की। चौसर ने उस वक्त कैंटरबरी टेल्स जो है ना एक आउटशाइन मतलब राइट डाउन की, जिसमें कलेक्शन जो है स्टोरीज़ जो है रखी गई। और उसकी टोन जो है मतलब टोन जो थी ना फ्रॉम कोटली टोन थी, जैसे कोट से जो रिलेटेड होती है। तो कोटली जो है वो टोन थी ऑफ द नाइट टेल्स की, और रफ ऑफन ऑप्शंस ह्यूमर था। तो इसलिए इसे टेक्निकल फैबुलियस भी कहा जाता है। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे फर्दर जैसे पिलग्रिम्स जो थे रिप्रेजेंट किए थे ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन लोगों ने अपनी सोसाइटी से मोरल स्टोरीज़ को टेल्स को जो है वो बताना शुरू की थी। वन बाय वन जो है वो एक मतलब पिलग्रिम्स आता था, वो अपनी स्टोरी को डिफ़ाइन करता था, डिस्क्राइब करता था फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। सो हाँ दैट, तो इस तरह जो है फिर चौसर ने वो तमाम स्टोरीज़ को कलेक्टिवली जो है ना वन बुक में जो है ना वो मतलब कलेक्टिवली जो है राइट मतलब कलेक्टिवली ग्रुप में जो है वो इसको पब्लिश की। और तमाम लोगों की जो मॉरल से जो सोसाइटी से मतलब लीव इन थी स्टोरीज़ को वो उसमें कंबाइन की गई। और उसमें जो कंबाइन करने के बाद जो है मोस्ट पार्ट जो होता है ना टेल्स क्लोजली रिलेटेड था टू देयर स्टेशन से इन द लाइफ। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस थे, पर्सनल कैरेक्टर्स यूज़ किए गए थे। तो फर्दर हम यहाँ पे जो है वो कैंटरबरी टेल्स को डिफ़ाइन करते हैं। कैंटरबरी जो थी एंड ही अपोज दैट दे पास द टाइम ऑन देयर जर्नी बाय टेलिंग स्टोरी। ईच पिलग्रिम इज़ टू टेल 2 ऑन द वे आउट एंड 2 ऑन द वे बैक। जाने पे 2 बताएगा, 2 आने पे ना स्टोरीज़ बताएगा। हु एवर इज़ जस्ट टू हैव जज करेगा हैव टू टोल द बेस्ट टेल विल हैव अ फ्री सफ़र एट द टेबार्ड्स ऑन दियर रिटर्न। तो जिसने अच्छी अपनी स्टोरी को बेस्ट मतलब रिप्रेजेंट की तो उसका जो है सफ़र जो होगा फ्री होगा। ऑफ हिज ambitious total of 120 stories थी, Chaucer complete only 24 by the time of his death. Even so the collection amount to some 17,000 lines पे था, mainly of rhyming verses but with some passages of prose. The pilgrims जो था represent with the all section of society from gentry to humble craftsmen के the only absentees are the laboring poor unable to afford to pilgrims of the kind. There are respectable peoples from the various classes get together there, such as the knight, the parson, the yamans, but the emphasis falls mainly on characters who are the pretentious, scurrilous and mendacious या avaricious और लेचरस करेक्टर जो थे और दिए। द पिलग्रिम्स जो थी आर विविडली डिस्क्राइब की गई थी वन बाय वन इन चॉसर्स प्रोलॉग में। द रिलेशनशिप बिटवीन द थीम जो था इवॉल्व होता है इन द लिंकिंग पैसेज बिटवीन द टेल्स एज हैरी बैले अरेंज किया था उन्होंने। हु शैल स्पीक नेक्स्ट। तो यकीनन आपको कैंटरबरी टेल्स के बारे में जो है वो नो हाउ हो गई होगी, तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी जो मैंने जो है इसमें आपको बताई। जियोफ्री चौसर के बारे में बताया, एलिटरेटिव वर्सेस के बारे में बताया, ट्रायलस एंड क्रेसियट के बारे में बताया, द कैंटरबरी टेल्स के बारे में बताया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस भी किया है, रिपीट भी किए हैं इनके स्पेशली वर्क को और वर्क के मतलब क्वालिटी को जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसमें। अल्लाह हाफ़िज़।